یہ ہیں ہندو مسلم بھائی بھائی سید SYE جی. السلام اجازت علیکم. دیجیے پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میرا بھی سوال وہی ہے جو مسٹر سمپل ٹی کے. ایک منٹ آپ یہ جو آپ مفتی نے صاحب لگایا میری ایک منٹ آپ میرا جی فرمائیے. سوری یہ سید SYE ہندو مسلم بھائی بھائی اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کیا؟ ہاں میں وہ انڈیا میں جو لڑائیاں ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہندوؤں کے تو میں دونوں کو ملانا چاہتا ہوں بس اتنا ہی. اچھا تو اس ملانے کی وجہ سے آپ ہی ہیں جو ماشاءاللہ بہت ایفرٹس کر رہے ہیں ایکس مسلم کے چینلوں پر جا کر. ہاں میں ہوں. اچھا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مشن کو میں سپورٹ کرتا ہوں. آپ ہی ہیں وہ؟ میرے کو الاؤ کریں گے آپ؟ میرا کوشچن بھی ہے سو اس کو بھی میں یہ تو بتاتا ہوں. نہیں پہلے تو ہم کوشچن کریں گے آپ سے. میں تو منتظر تھا کہ آپ تشریف لیں اور یہ سوال آپ سے ہو کہ آپ ہندو اسلاموفوب رائٹ ونگرز ایکس مسلم گینگز کے پاس جا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے مشن کو سپورٹ کرتا ہوں. تو یہ آپ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں 100% صحیح ہے. خالی میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، میں آلسو اسلاموفوبیا کو بھی سپورٹ کرتا ہوں. اور اسلاموفوبیا کو بھی سپورٹ کرتے ہاں ہیں؟ جی ہاں میں دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ آپ سکینزوفرینیا کو بھی کرتے ہیں، صرف آپ کو پتہ نہیں ہے. اچھا سنیے میں ایک کٹر مسلمان ہوں. کٹر مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کٹر تو میرا ایمان کبھی وہ نہیں ہوا ڈاؤٹ کر رہا، اللہ پہ ڈاؤٹ ہو رہا یا قرآن پہ ڈاؤٹ ہو رہا یا پروفٹ محمد پہ ڈاؤٹ ہو رہا. اللہ تعالیٰ کی عزت کرتے ہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ کا احترام اور رسول اللہ کا احترام ہے آپ؟ ارے بھائی میں کٹر ہوں بولے تو پھر ان پہ احترام ہی رہے گا نا. اچھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کرے اس کا بھی آپ احترام کرتے ہیں؟ دونوں کشتیوں کے سوار ہیں. نہیں دیکھیے رسول اللہ کو بھی لوگ جو ہے سو برا بھلا بولے، انہوں کچھ بھی نہیں بولے، ان سے بات کرتے تھے تو میں بھی بات کرتا ہوں. آپ اپنے دل سے ان لوگوں کا احترام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. میں ایسا تو نہیں بولا ان پہ. آپ سپورٹ کر رہے ہیں نا ان کے چینل پر جا کر. میں وہ اس کا ریزن ہے بتاتا ہوں. ان سے اگر میں اچھی بات کرا بھی تو کیا میں ان کو وہ کرتا ہوں؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا، اچھی بات تو ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے چینلوں پر ایک سے ایک آتا ہے، ہم اچھی بات کرتے ہیں. آپ ان کے چینل پر یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں. ہاں میں اس کو بھی سپورٹ. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں اسلاموفوبیا کو میں سپورٹ کرتا ہوں. آج سے 20 سال سے پہلے کرتا ہوں. میں بھی 9/11 سے پہلے کرتا ہوں میں. اس لیے کہ بھائی ہر قوم میں برائی ہوتی ہے، مسلمانوں میں بھی برائی ہے، ہندوؤں میں بھی برائی ہے، کرسچنوں میں بھی برائی ہے، سب میں برائی ہوتی ہے نا. اب تو اپنے جو انیمی ہوتے ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم میں کیا برائیاں ہیں، کیا غلطیاں ہیں. مسلمانوں میں جو برائیاں ہیں اس کی وجہ سے آپ اسلاموفوبیا کو، یعنی یہ اسلاموفوبیا کا مطلب ہے اسلام میں برائی، مسلمان میں برائی نہیں. اب مسلمان میں برائی بھائی آپ مسلمان برائی کرتے ہیں نا. ایک منٹ، اگر آپ اسلاموفوبیا کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ ایکنالج کر رہے ہیں کہ اسلام میں برائی ہے، تو آپ کٹر مسلمان کیسے ہیں بھائی؟ دیکھیے میرا سمجھانے کا وہ سنیے، آپ مت بولیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، آپ کو سمجھا نا. کیوں بھائی، وجہ اس کی میں بتاتا ہوں بھائی. مسلمان برا کام یہ کرتے عجیب و غریب آپ نے نہیں. رول رکھا ہوا ہے. دیکھیے اسلاموفوبیا، دیکھیں اسلاموفوبیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسلام ہے اور ایک فوبیا ہے. آپ کو پتا ہے فوبیا کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اب فیئر کو بولتے ہیں. ارریشنل فیئر کو، ایسے ڈر کو جس کی کوئی ریشنل یا عقلی وجہ نہیں ہوتی، اس کو فوبیا کہتے ہیں. ویسے ڈر بڑی اچھی چیز ہے، ہم انسانوں کے سروائیور کے لیے بڑی ضروری چیز ہے یہ، لیکن کوکروچ سے ڈرنا ایک ارریشنل فیئر ہے. اسلام سے ڈرنا ارریشنل فیئر ہے. اور پرٹیکولرلی وہ لوگ جن کو اسلام کے بارے میں جو CNN اور فاکس نیوز سے اسلام کے بارے میں پڑھیں گے وہ اسلاموفوب کہلاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وہ اسلام کہتا کیا ہے. آپ بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو اسلام کو گالی دینے کے لیے پیسے لیتے ہیں اور ایکسٹریمسٹ سناتنی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ ان کو جا کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے کام کو سپورٹ کرتا ہوں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں پکا مسلمان ہوں. سنیے صاحب، میں بولتا ہوں. سنیں گے کبھی ہماری بھی سن لیا کریں نا. ہمارے کامنٹ، ہمارے ویڈیوز پہ آ کے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی غالباً یہ تشریح کرتے ہیں کہ جو بھی ہے یہودی ہے، سبائی ہے، عیسائی ہے، سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. تو آپ کے کامنٹس ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، کبھی ہماری بھی سن لیا کریں نا. نہ آپ کو قرآن کی سمجھ ہے نہ حدیث. اگر ہندو یہودی عیسائی سب کو جنت میں جانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ غیر مسلموں کو تو وہ تو بیکار ہوئی، الیاذ باللہ. ضرورت ہی کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی؟ سب کو جنتی میں جانا تھا تو
देखिए वैसा नहीं है, अल्लाह तो वो आयत में है ना भाई, वो आयत में अल्लाह बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, वो अल्लाह आयत में बोलता है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना यकीस, आप ये कह रहे हैं कि रसूल को आने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सबको जन्नत में जाना है। मैं वैसा तो नहीं बोला, मैं वैसा नहीं बोला आपको। सबको आप ठेकेदार बनकर सबको जन्नत में ले जाना चाहते हैं ना? नहीं, कुरान बोल रही है, अल्लाह बोल रहा है वैसा। वो आप समझ रहे हैं, अल्लाह ऐसा नहीं बोल रहा है, वो आपकी गलत इंटरप्रिटेशन है। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ आप जन्नत को जाएंगे, समझे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमान ही जाएगा, मुसलमान के अलावा कोई नहीं जाएगा। अच्छा चलिए, अच्छा वो मैं जो सिंपल टीके साहब बोल रहे थे, सवाल कर रहे थे, उस पर अपन चले जाएंगे फिर से। देखिए उन्होंने बता रहे थे दो जनों को डिफरेंट, ये आज की स्ट्रीम कट्टर मुसलमानों के लिए तो है ही नहीं, आज की स्ट्रीम कट्टर मुसलमानों के लिए नहीं है। या तो आप ये कहें कि मैं मुनाफिक हूँ, मैं आपके सवाल लूंगा, अरे ऐसा और मत ये आप ये कहें नहीं, ऐसा ही करना पड़ेगा। देखिए मुसलमानों में बुरी आदत है। मैंने जब आपकी वो वीडियोस देखी हैं तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि हाउ कम ये आदमी, एक इस्लामोफोब जो दिन रात मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, वो औरत कि जिसको देखकर एक मुसलमान को कै आए लिटरली, उसके चैनल पर जाकर आप ये कहते हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। क्या आपने किसी मुसलमान को देखा है जो ये कहे कि मैं शैतान को सपोर्ट करता हूँ? क्या शैतान को सपोर्ट करने वाला मुसलमान होता है? इस्लामोफोबिया को सपोर्ट करने का मतलब है शैतान को सपोर्ट करना। आप शैतान को सपोर्ट करते हैं? आप शैतान को सपोर्ट करते हैं? साहब मैं मुसलमान हूँ, वो तो शैतान को सपोर्ट कैसा बोलते हैं? नहीं, आंसर माय क्वेश्चन, आप शैतान को सपोर्ट करते हैं? मैं नहीं करता। क्यों नहीं करते? शैतान भी तो सबसे बड़ा इस्लामोफोब है, क्यों नहीं करते? इस्लामोफोबिया को सपोर्ट सुनिए, मैं बता, देखिए साहब मैं बता, तो आप मेरे को बोलने तो दीजिए, आप मेरे को बोलने ही नहीं दिया आप मेरे को। देखिए साहब मैं उनको इसलिए सपोर्ट करता हूँ, आप इल्जाम लगाते प्रॉफिट मोहम्मद पर, आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद एक 6 साल की लड़की से शादी की, समझे ना? उसको यहाँ पर बोलते इंसान, आज के लोग इंसान बोलते हैं ये तो बहुत बुरी काम किया है, ये बहुत गलत काम किया है, ये अच्छा बदकार आदमी था ये कि वो 6 साल की लड़की से शादी करा। आप लोग बिलीव करते वो, मैं बिलीव नहीं करता ना। मेरा प्रॉफिट 6 साल की बच्ची से शादी नहीं करा। सुनो, प्रॉफिट जो है बोलते हैं कि बच्ची, तुम सुनिए, ये मोनोलॉग नहीं है ना, ये मोनोलॉग नहीं है। ओ भाई आप जब एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाएंगे ना तो आपको ऐसी जहर फैलाने के लिए बड़ा टाइम देंगे, ये मोनोलॉग नहीं है। पहली बात ये है कि मुसलमानों में अगरचे गालिब राय है कि सैयद उम्मुल मोमिनीन की उम्र इतनी थी, लेकिन ये कोई हमारा उसूल नहीं है। क़यामत के दिन किसी से उसकी जन्नत दोज़ख इस चीज़ पे तय नहीं होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनकी हिस्टोरिकल एविडेंस ऐसे मिलते हैं कि उनकी एज ज्यादा थी। मैं खुद ये राय रखता हूँ कि उनकी एज ज्यादा थी, लेकिन आप जब कहते हैं, लेकिन मेरी बात बोलते हैं, यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, आपको बहुत अरे चीखने से इंसान की ज्यादा अकल सामने नहीं आती है। मुझे बात कर लेनी दीजिए, सुनी ना? वो इंसल्ट है, वो इंसल्ट है प्रॉफिट का। मैं इंसल्ट नहीं करता, तुम लोग करते हैं। अच्छा ठीक है, ये अच्छा हम सब अच्छी कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आपका जो आप कहते हैं कि एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे जाके आप सपोर्ट करते हैं, तो वो ये नहीं कह रहे होते कि प्रॉफिट पे किसी ने गलत इल्जाम लगाया हुआ है। वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट ने ऐसा किया, और फिर आप जाके और फिर उसके बाद वो प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करते हैं, गाली देते हैं, सब मुसलमानों को गाली देते हैं, और उसके बाद आप जाके कहते हैं कि मैं आपकी इस बात को सपोर्ट करता हूँ। जब मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना कि आप मान जाए आप मुनाफिक हैं, तो वो बड़ा अच्छा आपको ऑप्शन दे रहे हैं। घूम फिर के जो बात वहीं पे आएगी, तो आप अगर ये मान लें कि आप मुनाफिक हैं, तो आप अगर मान लें कि मुनाफिक हैं, तो हम आपके सवाल का जवाब देंगे। आप मान लीजिए, आप लोग जो डिसएग्री होगा आपसे, तो वो बोलते हैं आप काफिर है। वो जो भी डिसएग्री होगा, ये नहीं होते कि हम आपसे डिसएग्री इसलिए नहीं है कि आपका सवाल है, हम आपसे डिसएग्री हो जाते हैं तो काफिर है शिया। हम आपको मुनाफिक ये मानकर चल रहे हैं क्योंकि आप शैतानों के पास जाकर उनको सपोर्ट करते हैं। जी शेख उस्मान साहब, आई एम सॉरी मैंने आपका टाइम लिया, थोड़ा सा। कोई बात नहीं। सैयद साई, जैसे आपने अपने आप का नाम रखा है, पहली बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि रेबेका जो है बाइबल में, उसकी क्या उम्र थी जब उसकी शादी हुई थी इसहाक में, बाइबल के मुताबिक? जी हाँ, 3 साल में इंटरकोर्स हो गया था उसका। शाबाश, पढ़े लिखे लगते हैं, शाबाश। तो आपने प्रॉफिट भी ऐसा कर लिए, बोलिए आप। एक सेकंड, पहली बात, एक अजीब बात आपने की है, आपने कहा आपका प्रॉफिट।
आपने ये नहीं कहा मेरा प्रॉफिट। ये बड़ी अजीब बात भाई देखो, आपके प्रॉफिट 6 साल की लड़की से शादी किया है, मेरा प्रॉफिट नहीं किया ना। एक सेकंड 6 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, वो बात हम करेंगे। एक सेकंड, आपने अभी ये बड़ी अजीब बात की कि तुम्हारा प्रॉफिट, मेरे प्रॉफिट नहीं किया। अगर मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने किया है तो फिर वो मेरे प्रॉफिट हैं या आपके प्रॉफिट हैं? देखिए, मैंने बिलीव करता प्रॉफिट जो है सो 6 साल की लड़की से शादी किए, वो 18, बीबी आयशा जो है सो 18 साल की उम्र थी। ठीक है, अच्छा ठीक है, बात सुनो। आपसे मैंने ये नहीं पूछा कि उनकी उम्र क्या थी, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि ये नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने किया है तो क्या वो आपके प्रॉफिट नहीं है? मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नबी नहीं है? 6 साल की उम्र में शादी किया है तो नहीं, फिर से आप उस पे गए। मैंने शेख साहब वो ये कह रहे हैं शेख उस्मान साहब वो ये कह रहे हैं चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में शादी की इसलिए वो मेरे प्रॉफिट नहीं है। क्लियर कह दिया उस बंदे ने। नहीं तो ये सैयद भाई आप ये कह रहे हैं कि नबी मोहम्मद आपके नबी नहीं है? नहीं, वो तो मेरे नबी है, मगर 6 साल से शादी नहीं की। अच्छा, तो अगर आपके नबी हैं तो ये बड़ी अजीब बात आपने की है कि आपके प्रॉफिट। देखिए आपका निफाक जो है सामने आता है ना। अच्छा, अगर वो आपके नबी हैं तो फिर आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आपके नबी और मेरे नहीं, फिर सवाल ये होना चाहिए कि क्या उन्होंने की है या नहीं की। अच्छा, क्योंकि अगर आपके प्रॉफिट हैं, एक मिनट, एक नहीं छोड़ेंगे नहीं, किधर आप इतनी जल्दी कैसे भागेंगे हमसे? देखिए, जब आपने कहा मैं कट्टर मुसलमान हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, मोहम्मद अली साहब को मानता हूँ, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ऐसे मानता हूँ जिस तरह मेरी ख्वाहिश हो। या तो मानते हैं या नहीं मानते। उसके आगे अगर आप बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा की उम्र के बारे में बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल हाजिर, हमारी पूरी वीडियो है इस पे। आप मेरा नाम उस्मान इब्न फारूक एज ऑफ आयशा डाल सकते हैं, उसी तारीख की किताबों को स्कैन करके पूरी हमने वीडियो बनाई है, इसका कोई मसला नहीं है। ये कोई पहली दफा किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन ये मैं आपसे कहूंगा, अर्ज करूंगा कि हर चीज सच्चाई से फिर करें, मुनाफिकत और झूठ से नहीं। तो अगर आप, पहली बात ये आपने कहा मैं कट्टर मुसलमान, अल्लाह को मानता हूँ, नबी को मानता हूँ, अगर ये बात सही है तो फिर आप ये कहें कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी किया हो, अगर मानते हैं तो मानते हैं। अगर आगे उस पे आप कहना चाहते हैं कि क्या ये इस तरह हुआ था या नहीं हुआ था, तो उस पे आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन पहले आप ये बात वाज़ेह करें, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नबी मानते हैं या नहीं? मानता हूँ। अच्छा चलिए, मानता तो हूँ। ठीक है, एक सेकंड, सवाल इतना ही था। अब आप ये बताएं कि जो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने जो काम किया या नहीं किया, इसका फर्क आप कैसे करते हैं? अकल शरीफ से। हाँ, अकल से। अकल से। अच्छा। तो अगर आपकी अकल में ये बात जाए कि ये घोड़े पे बैठे थे और हदीस में आए कि ऊंट पे बैठे थे, तो आपकी अकल माने या हदीस को माने? नहीं, मैं तो अकल इस्तेमाल करूंगा। जब मैं कुरान भी पढ़ूंगा तो अकल इस्तेमाल करूंगा ना भाई। अच्छा। तो मतलब आपकी अकल कुरान और हदीस से ज्यादा कवी है? नहीं, अल्लाह बोलता मेरे को अकल दिया है। वो बोलता है कि अकल दिया पढ़ते हैं किधर बोलते हैं? अकल इस्तेमाल करो। अल्लाह बोलता कुरान पढ़ते कौन सी आयत में? कौन सी आयत में? अरे अल्लाह पूरे कुरान में बोलता तुम इसे। नहीं सही भाई, देखिए इस तरह आप जैसे लोगों से हम आपको भागने नहीं देते। अल्लाह बोलता है, अल्लाह ने कहा। देखें, मैं जब कहता हूँ ना काल अल्लाह, तो मैं आपको फिर आयत पेश करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी अकल से नहीं कहता कि अल्लाह ने ये कहा है, मैं नसूस से कहता हूँ। आपने अपना अल्लाह बना दिया, नऊज़ु बिल्लाह, देखिए एक आयत में अपना एक नबी आपने बना दिया अपनी सोच में। एक मिनट अल्लाह एक आयत में बोलता है, वो क्या कहते हैं? कुरैश को, अरब फेगन को बोलता है। कौन सी आयत में? सुनिए तो स्वयं आपको याद आ जाएंगी कौन सी आयत में बोलता है। मुझे नहीं याद आएगी, आप पेश करेंगे। एक मिनट दीजिए मेरे को। एक आयत में बोलता है कि तुम अपने खानदानों की एंसेस्टर की क्यों फॉलो करते हो उनको, तुम सोचते नहीं हो? याद है या आई याद? किस चीज बोलता ना तुम्हारे माँ बाप को क्यों फॉलो करते, जब बोलता है तुम्हारे माँ बाप को। हाँ, किस चीज पे सोचते नहीं हो भाई? वो जो नाजिल हुआ है कुरान, सोचो कुरान, अल्लाह तदब्बर नहीं करते।
सोचो बोल रहा ना अल्लाह। अच्छा देखिए ये मुफ्ती नहीं अल्लाह ने कहा कि यासिर अपनी भाई, अकल से नहीं 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 अल्लाह नहीं 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 अभी आप मुफ्ती आगे नहीं यासिर भाई, अल्लाह बोलता है अकल इस्तेमाल करो या नहीं? एक मिनट, मुफ्ती यासिर को भूल जाइए, अभी शेख उस्मान आपसे बात कर रहे हैं। देखें देखें नहीं देखें पर देखें ये हजरत, तो बोल ये रहे जो अल्लाह आप को ये जो इस्तेमाल ही मत तरीका करो है ना, बोल रहा है। ये जो तरीका है ना, इधर आप जंप करेंगे, जब पकड़े जाएंगे तो उधर जंप करेंगे, फिर आयशा की उम्र पे जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, ये नहीं होगा। ओके ठीक गुफ्तगू है। सामने रखेंगे, ठीक है। देखिए अकल इस्तेमाल करने के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं रोजाना कोशिश करता हूँ अपनी अकल इस्तेमाल करूँ, लेकिन अकल सही इस्तेमाल इस तरह होती है कि क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल अलैहिस्सलाम के मुताबिक। हम जब कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं ना, तो हम अपनी अकल से नहीं बनाते कि अल्लाह कौन है। हम कहते हैं कुरान में अल्लाह ने अपने अल्फाज में, अपने कलाम में हमें क्या कहा है कि अल्लाह कौन है, ठीक है। तो उस पे फिर हम जो ये अकीदा रखते हैं ना, ये अकल इस्तेमाल करनी है। जब हम ये कहते हैं कि हम नबी अलैहि सल्लम को मानते हैं, तो फिर जो सही सनदन अहदीस से वाज़ेह बात आए तो उसको हम मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरे नबी को ऐसा करना चाहिए था मेरी अच्छा अकल के मुताबिक, अच्छा ये वरना हर एक बताइए। का मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले बात सुने। आप मुनाजरे के लिए मत आए, बात सुने, सोचें, समझें, अल्लाह को जवाब देना है। देखें, तो अब जब कुरान हदीस से एक बात वाज़ेह हो जाए, तो फिर एक इंसान का हक नहीं है कि अपनी अकल उसके खिलाफ में लड़ाए। फिर उसको मुसलमान, अब नहीं मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मुसलमान किसे कहते हैं? अस्लमा, मुस्लिम मिन अस्लमा, अपने आप को जो सुपुर्द कर दे कि अल्लाह ने जो कहा है, जो नबी वसल्लम की सही हदीस में है, वो अतीउल्लाह व रसूलहू, ये मैं मानता हूँ। अब आप ये बताएं कि जब नबी वसल्लम की कोई हदीस सामने आए कि ऐसे हुआ था या नहीं हुआ था, या कहा था या नहीं कहा था, या किया था, तो उसके क्या शुरूत हैं जिससे उस हदीस को कबूल करते हैं या तर्क करते हैं? हाँ, मैं देखिए मैं हदीसों को 5 हैं, मानता वैसे हूँ आपको मैं। आसान कर रहा हूँ आपके लिए। मैं हदीसों हदीसों को को आप मानता हूँ। मानते हैं, हाँ तो जी, हाँ। हदीस को कैसे मानते हैं? अपनी हाँ, अकल के बतौर, जो आपके मकबूल हो, तो फिर आप हदीस को नहीं मानते हैं। आप अपनी अकल के लिए हदीस को गुलाम बनाना चाहते हैं। हाँ, इस देखिए तरह नहीं होता। मैं आपको हदीस जैसा मानने भी है, के लिए 5 शुरूत हैं। क्या हैं वो? नहीं नहीं पता, साहब मेरे को नहीं मालूम, नहीं मेरे को पता नहीं मैं। मालूम। हाँ, तो सैयद भाई फिर आप एक काम करें, देखिए भाई जाने दिए नहीं, आप एक मिनट, बात सुने, अननेसेसरी आप बात मेरे को बात सुने, बात नहीं, सुने, जाने नहीं देंगे। मेरी अब नसीहत अब आ गए हैं तो जाने नहीं हाँ, देंगे। जाइए, हमारी मर्जी, आप अपनी मर्जी से आए, हमारी मर्जी से जाएंगे। हाँ, अब बात मुफ्ती साहब ने की ना, अब आप ये बात सुने। देखिए सही साहब, मेरी नसीहत ये है कि बोलने से पहले समझें, कहने से पहले पढ़ें। देखें, उसूल हदीस पढ़ें कि हदीस कैसे मकबूल होती है। पहले ये पढ़ें कि तारीख में 6 साल की उम्र में शादी नहीं हुई थी। शादी तो उस कहते हैं जब कोई इंटरकोर्स की तरफ जाता है, जैसे आपने कहा है, लेकिन ये शादी की बात हुई थी। जो 6-7 साल की रवायत 2 रवायतों में आई है, सही मुस्लिम में 7 साल, बुखारी में 6 साल। इस तरह और नुसूस से और उम्रें कुछ उलमा ने भी निकाली हैं, लेकिन इसका मसला कुछ नहीं है, क्योंकि उस वक़्त ये शादी की उम्र थी, जो भी आयशा रज़ की उम्र थी, चाहे जब निकाह हुआ, जब बात हुई, जब वो पहुंची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सो 9 साल की उम्र की भी रिवायत आई है बुखारी शरीफ में। और जो लोगों ने और रिवायतें दी हैं, वो भी अगर हम साइड पे रखें, तो उस वक्त ये शादी की उम्र थी। आजकल लड़की को हम कहते हैं कि जाओ पढ़ो, स्कूल पढ़ो, मदरसा पढ़ो, ये करो, वो करो। उस वक्त ये कुछ नहीं था। तो 10-12 साल का लड़का भी शादी करता था, क्योंकि वो क्या करेगा, जब बालिग हो जाए, जब बुलूग इंसान में आ जाए, जब नेचुरली वो बच्चे पैदा करने की इस्तेदाद पे आ जाए, तो जब कॉलेज यूनिवर्सिटी ना हो, तो इंसान क्या करेगा, शादी करेगा। तो जब तक आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस मरहले तक नहीं पहुंची, जब नेचुरली औरत मतलब शादी के लिए तैयार हो, तो उस तक जमा नहीं हुआ, मतलब वो एक जगह नहीं गए। ये शरीयत में हम समझा चुके हैं। और अगर इस पे आपको एतराज है, तो आप अपने खानदानी परदादा को देखें, तो उन्होंने भी 12-10 साल की लड़कियों से शादियां की होंगी, क्योंकि उस जमाने में ऐसे ही होता था। हमारे परदादा को भी आप देखें, तो इस तरह ही शादियां होती थी। सैयद साहब, तो आपकी उम्र क्या उस है? मेरी 64 है। आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी बहुत लेट हुई थी मेरी शादी। और आपके अब्बा की? मेरे को नहीं मालूम, मेरे को उतना नहीं मालूम। अच्छा मालूम होना अब्बा तो चाहिए, मालूम है कौन है। मालूम होना हाँ, चाहिए आप, जो कि आपको शादियों से बड़ी दिलचस्पी है कि किसकी कब हुई है, और शादियों की बुनियाद पर आप लोगों की सच्चाई और झूठ का पता लगाते हैं। अच्छा आपको अब मालूम मैं अपनी अब एक मिनट हाँ, सैयद भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। ओके। मेरी नानी जो है, उनकी 12 साल की उम्र में शादी हुई थी, ठीक है। मेरी नानी अपनी कह रहा हूँ, अभी अभी की बात है, कोई 1400 साल पुरानी बात भी नहीं कर रहा, ठीक है।
اب آپ امریکن تاریخ پڑھیں تو امریکہ کے جو بادشاہ پریزیڈنٹ سے رہے ہو چکے ہیں ان کی کئیوں کی شادیاں لڑکیوں سے ایسی ہوئی جو 12 14 15 سال کی. انگلینڈ کی ہسٹری آپ پڑھیں, تاریخ دنیا کی آپ پڑھیں, تو ہم ان کو آج کے اسٹینڈرڈ سے جج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے پہلے ہی رشتہ آ چکا تھا, مطلب جو اس وقت کا رواج تھا اس عمر سے وہ تھیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیں جو مشرکین بھی تھے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ان کی عمر کم تھی, کیونکہ وہ عادتاً عمر تھی شادی کی. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس بات کو چھوڑ کے یہ بتائیں کہ اگر آپ کٹر مسلمان ہیں. میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو, میرے خیال سے ایج آف عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ تو یہاں چھوڑیں, میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کٹر مسلمان ہیں؟ اب میرے کو ایک منٹ دیجیے نا, میرے کو ایک منٹ دیجیے, آپ ایک منٹ دیجیے میرے کو. کٹر مسلمان صاحب, آپ نماز پڑھتے ہیں؟ دیکھیے میرے کو ایک منٹ دیجیے سوال کرنے کا. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ آپ کا حق نہیں ہے پوچھنا کا, وہ آپ کا حق نہیں ہے. مسلمان ہے نا, کٹر مسلمان ہے, میں جاننا چاہ رہا ہوں. میں پڑھتا ہوں دعائے قنوت ذرا سنا دیجیے. ہاں نہیں, اب اس میں ڈیٹیل ایسا مت جائیے بھائی, جب وہ میرے کو ایک سوال کرنے دیجیے آپ. دعائے قنوت سنا دیجیے جلدی سے. نہیں اب ویسا مت کیجیے صاحب پلیز. ایک منٹ سر, اب وہ سارا مت کیجیے. اب آپ بولیں گے پھر میں کفار ہوں پڑھنے کے بعد, پھر بولیں گے ایسا مت کیجیے. آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کا پوچھنے کا حق نہیں ہے, وہ آپ کا پوچھنے کا حق نہیں ہے. 64 ایئر اولڈ ہوں, میرے کو آپ کا حق نہیں ہوتا ایسا. آپ انسلٹ کر رہے ہیں, آپ سمجھے نا, ایسا مت کیجیے آپ. چلیے آپ نے کا حوالہ دے دیا, اس سے خاموش ہو گیا ہوں میں. یہ بھی اسلام کے اخلاق میں سے. ہاں پھر ویسا اخلاق سے بولے, اسلامی اخلاق سے بات کرو. کوئی بھی اگر ایک کفار بھی بولتا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ خاموش بیٹھ جائیے آپ, سمجھے نا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے کہ تم ان کو نامسلم مت بولو. یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نمونے آتے ہیں جو اسلام پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اس لیے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے بعض مرتبہ. ہاں سنیے, اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ جب لوگ بولتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو صحابیاں بولتے تھے کہ وہ تم مسلمان نہیں ہے, تو اللہ بولتا ہے کہ تم ایسا مت بولو ان کو, تم بھی ایسے ہی تھے. کون سی آیت ہے؟ اب وہ ہے, آپ پڑھ لیجیے, آپ کو معلوم ہو جائے گی. صاحب ہے وہ 40 کے بارے میں ہے. ہاں نمبر یاد نہیں تو آپ بولے کہ میرے کو نہیں ہے, وہ ہے آیت ہے. اللہ بولتا 40 پارے والی آیت. جی اللہ بولتا ہے کہ تم ان کو مت بولو مسلمان نہیں. 40ویں پارے کی 165ویں سورت میں ہے وہ. آپ کو نہیں پتا شیخ عثمان صاحب؟ فاروق صاحب آپ کو ہر چیز نہیں معلوم ہے, سمجھے نا. نہیں معلوم آپ کو, بالکل. ہاں میں نے تو نہیں کہا مجھے ہر چیز معلوم ہے, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کچھ کہتے ہیں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں یہ کدھر بات آئی ہے, کیونکہ ہر ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے یہ کہا ہے سوائے دلیل کے ساتھ. دلیل سب کو نہیں یاد رہتی, سمجھے نا, دلیل سب کو یاد نہیں رہتی, آپ کو ہوں گی. یہ بات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذی کفر, جو کفر کرتے ہیں. قرآن میں ان کو کافر بھی کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا کسی کو؟ بہت ساری جگہ بہت چیزیں آتا ہے ویسے. دیکھیے اب میرے سے اگر ڈیبیٹ کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے آپ میرے سے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, چلیے اس پہ جائیے, اپن قرآن پہ اور حدیث پہ جائیں گے. ارے بھائی میرے کو چانس نہیں دیے آپ کو بڑا چانس دے دیا ہے, اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ہمیں اور بھی کالرز لینے ہیں, ہم کٹر مسلمانوں کے لیے تو یہ ٹریٹ تو یہ ہے ہی نہیں. صاحب میرے کو بولنے پوچھنے نہیں دیا آپ ان کو. اب آپ اگلے ہفتے آئیں گے شیخ عثمان صاحب. ایک منٹ ہو جانے دیجیے, ایک منٹ دے دیجیے مجھے, ایک منٹ دیجیے. 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا, 1 منٹ سے زیادہ نہیں. سنیے, دیکھیے اللہ بولتا ہے کہ عورت کو زبردستی اپنا مت بنا لو. قرآن میں عورتوں کو زبردستی نہ کر لو تو اپنا مت بنا لو. قرآن میں ہے یہ؟ کدھر ہے؟ میرے کو نکال سکتا ہوں میں. اچھا چلیے چھوڑیے. اچھا چھوڑیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ بولے ہیں قرآن میں کہ عورت کو زبردستی ہڑپ مت کر لو, اس کو اپنا مت بنا لو. وہ ہے, آپ کو یاد نہیں ہوگا, بس چھوڑ دیجیے. آپ دونوں کو یاد معلوم نہیں ہے کہاں ہے سو. میں یہ بتاؤں, دوسری حدیث میں یہ ہے, پرافٹ بولتے ہیں کہ جب تم کسی بچی سے شادی کرنا ہے تو جو ہے سو اس کی رضامندی لو. ہے یا نہیں ہے صحیح حدیث میں؟ دیکھیں نہیں ہے نہیں. دیکھیے مت بول کے میرے کو سوال کر لیں بھائی, سوال کر لیں. جواب دوں سید بھائی کہ آپ مجھے جواب دینے کا حق نہیں دے رہے؟ ہے نہیں یہ بول دے بس.
प्रॉफिट बोले हैं आप कि मेरा बच्ची आप की मेरा जवाब चाहते हैं तो मैं आपको जवाब अच्छा ठीक है दे दिए अगर जवाब मेरा नहीं मेरे चाहते को तो फिर मेरे को टाइम दीजिए कि फिर बोलूं मैं कुछ आपका सवाल क्या है? देख प्रॉफिट बोले हैं जब बच्ची की शादी कर रहे हैं तो बच्ची की रजामंदी लीजिए आप है सवाल नहीं क्या है? हदीस सही हदीस में सवाल है आप नहीं कर लो भाई जल्दी से, आपके पास है या नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे सवाल ये है ठीक सवाल ये देखिए, शेख साहब इसका जवाब दे दीजिए और उनको फिर आगे बढ़ाएं जी। ठीक है। देखिए, एक जो लड़की नाबालिग हो, जो लड़की छोटी हो, तो उसके माँ-बाप उसके सवाल जवाब उससे करते हैं, लेकिन उसकी खामोशी उसका जवाब होता है। हाँ जब वो क्योंकि जो एक लड़की छोटी उम्र की हो, जिसकी शादी पहले नहीं हुई हो, तो वो फिर ऐसी बातें नहीं करती, हाँ, मैंने शादी करनी है, क्योंकि वो शर्म उस पे आती है, तो अच्छा उसकी अच्छा खामोशी ठीक उसका जवाब है। अच्छा ठीक है, आगे सुनाएँ। चलें ठीक है, इनका सवाल हो गया है, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। नहीं सवाल।